the micro. But if you talk about the macroeconomics, macro means to say to study the issues or the topics on a broad level, on a huge level. For example, you can say in unemployment, employment level, या फिर national income, या फिर total economy का output. These are the issues which are related to the macro. Or macro level पे, जैसे for example, you can see the petrol prices. Petrol prices are equally applied for all the consumers in the economy. So that is a macro topic because government is deciding and the price is equal for every consumer in every part of the country. So that is that lies under the macroeconomics. Unemployment issues because like how many people who are not having the jobs but they are willing to do the work, that is a macro topic. Micro means to say the issues related to the issue that is on a small level. For example, consumers behavior, you are targeting to a firm, ठीक है, households, ये सारे के सारे behavior आपके micro level पे आते हैं, ठीक है, which we study on a small level, we discuss on a small level. So अगर हम इस syllabus को divide करें, तो इसमें first 3 जो आपके topics आते हैं, section 1, 2 and 3, they are related to the micro. Basic economic problem, allocation of resources, microeconomic decision making. You can see in the third section microeconomics, ठीक है, मीसो से इसमें भी आप जितना workers हैं, firms हैं, households हैं, money and banking है, firms आ जाती हैं, उनका behavior. These are all the topics which are related to the micro. So in the first 3 sections, we only consider the microeconomics. But when we talk about the macro level, then the section 4, section 5 and section 6, these 3 sections are related to the macroeconomics, okay? Because they target the major economic issues on a macro level, on a huge scale, and the government directly deals these issues to solve this, just like a poverty, population, unemployment, you can say living standards आ जाता है इसमें, exchange rates आ जाते हैं, monetary policies इसमें different आ जाती है, economic growth overall, how your economy is growing. So these 3 sections are related to the macroeconomics. Okay, any question related to the paper pattern or syllabus? You can only thumb up so I could have an idea. Okay. The very first topic which we are going to discuss today from the section 1 is the basic economic problem. From this basic economic problem, we will discuss today unit 1 and unit 2, nature of basic economic problem and factors of production. I need your interaction right now because I want to ask few questions before to start this topic. Nadia, do the students have right to give a reply? Are they allowed to turn on their mics? Yes, they are allowed to. Okay, because they are not responding, I need their response. That's yes. Any one of you? Yes, Huzaima Gul. जी मैम. Yes, beta. Do you know that what is our basic problem of the economy? जी. Do you have any idea about the basic economic problem which we are facing nowadays? Generally, that you observe in your daily life news founding? No मैम. Okay, let me give you a simple example. I start from your home. You have a limited income or a budget monthly, okay? And you want to, you have many wishes and the wants that you want to have. For example, you want to have a luxury house, luxury car, many other things, okay? But that is not possible to have everything that you wish to have in your daily life because your income and the budget is limited,
ठीक है, क्योंकि हम उससे भी क्या होता है कि हम मजीद एफर्ट करते हैं, हमारी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती है कि हम अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दें। तो ये हमारे लिए क्या है, दैट इज अ प्रॉब्लम दैट वी हैव टू टारगेट इट, दैट वी हैव टू सॉल्व इट। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मैनेज आवर इनकम। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी इनकम में से देखते हैं कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज डेली लाइफ में क्या है, हम पहले उसको फुलफिल करते हैं, देन वी गो फॉर द अदर वंस। ठीक है, तो ये दैट इज द कह लेंगे प्रॉब्लम फॉर आवरसेल्फ कि हमने कैसे अपनी इनकम से अपने रिसोर्स, अपनी डेली रूटीन्स को, अपने नीड्स को, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। सिमिलरली, if you see the government will also face the basic problems, because गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिसपे उन्होंने स्पेंडिंग करनी होती है। जैसे उनके पास हेल्थ सेक्टर आ जाता है, जैसे उनके पास एजुकेशनल सेक्टर आ जाता है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाती है, उनके पास सिक्योरिटी आ जाती है। ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्वेस्ट या और इम्प्रूव इक्वली ईच सेक्टर। ठीक है, क्योंकि बिकॉज द गवर्नमेंट इज हैविंग अ लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड बजट। सो उस लिमिटेड बजट में रहते हुए कैसे उसने हर सेक्टर को टैकल करना है, उससे हर सेक्टर को डील करना है, दैट इज अ बिग इशू। सो दिस इज नोन एज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यस, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Okay, anyone else from other students who have a question? Okay, now we are going to start this topic about your syllabus outline. ठीक है, कैसे हमने इसको लेके चलना है। We have just discussed the problem that we don't have enough money, income, or government don't have enough budget so that they can fulfill their needs or their requirements. ठीक है, अब जो चीज हमारे पास कम होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं है, या फिर हमारे पास इनकम इतनी नहीं है कि हम अपने डेली बेसिस की जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें, तो वो जो चीज कम होती है दैट इज नोन एज अ स्कार्सिटी। ठीक है, स्कार्सिटी मीन्स टू से थिंग्स आर नॉट इनफ टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स कह लेंगे, नीड्स कह लेंगे। जब कुछ चीजें जो हैं वो आपकी नीड्स को या रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए काफी नहीं होती है, व्हेन दे आर नॉट इनफ, देन यू से दैट सिचुएशन स्कार्सिटी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो इस टर्म को नाम दिया जाता है दैट इज द स्कार्सिटी, एंड द स्कार्सिटी इज द बेसिक इशू एंड द प्रॉब्लम दैट ईच एंड एवरी इकोनॉमी फेसेस। ठीक है, कोई भी इकोनॉमी जितनी भी डेवलप हो जाए उसमें हमेशा रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनफ नहीं होते हैं, सो दैट दे कैन कोप अप विद देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमेशा उनको रिसोर्सेज चैलेंजेस रहते हैं रिसोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं रिसोर्सेज का वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ बिकॉज रिसोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई हाउस बिल्ड करते हैं, ठीक है, आप यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस। ठीक है, अब हाउस बिल्डिंग में कौन कौन से चीजें रिक्वायर्ड होंगी आपको? एनी वन ऑफ यू? वेरी सिंपल। यस, एनीवन? फारिया, अहमद, which one should I repeat? Scarcity. Scarcity means to say when you are not having enough resources, किसी चीज का रिक्वायरमेंट से कम होना। ठीक है, उसको हम स्कार्सिटी बोलते हैं। ठीक है, जब आपके पास इनकम इतनी ना हो कि आप अपने रिसोर्सेज को फुलफिल कर सकें, दैट इज स्कार्सिटी। ठीक है, जब आपके पास कह लें कि जो भी आप कोई चीज बनाना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपके पास चीजें इतनी ना हो कि आप उसको कंप्लीट कर सकें, दैट इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स टू से रिक्वायरमेंट से किसी भी चीज का कम होना, दैट इज अ स्कार्सिटी। इज इट क्लियर? You can just give a thumbs up.
Okay. 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 Next question was about the resources. Okay. Before going to the next point, I just want to clear about the resources. What are the resources? What do you think that resources? Let's start with an example. For example, you are going to build a house. What kind of resources will you need? G. Very simple. Anyone? Labor. Very good. आपने कहा कि labor. That is good. And good. Another is land. Very good. और इसके अलावा और क्या चाहिए होगा? मटेरियल. वेरी गुड. और इन सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? ब्रिक्स वो आपके मटेरियल्स में आ जाएंगे. और इससे भी पहले आपको क्या चाहिए होगा? फाइनेंस टू परचेज ऑल दीज रिसोर्सेज. अगर आप खुद अपने लिए घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यू आर अ पर्सन who is going to invest your money. ठीक है, you are going to invest your finance. ठीक है, so आप क्या you owner itself is also a resource to start any activity. ठीक है, so जब भी मैं resources का word use करूंगी तो आपने उसको that make sure कि resources means to say all these factors. ठीक है, जो हम किसी चीज को बनाने के लिए, कोई चीज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या कोई आपने मशीनरी बनानी है, कुछ भी आपने बनाना, घर में आप कोई भी फूड आइटम बनाते हैं, कोई रेसिपी बनाते हैं, उस रेसिपी में जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, ऑल दीज आर द रिसोर्सेज. ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल कोई जो है ना वो आपने बिरयानी बनानी है. ठीक है, उस बिरयानी के लिए आप जो राइस यूज करते हैं, आप उसके अंदर क्या यूज करते हैं? मसाला यूज करते हैं, स्पाइसेस आप ऐड कर रहे हैं, फिर आप उसमें चिकन ऐड करें. ऑल दीज आर द रिसोर्सेज टू मेक दैट प्रोडक्ट. ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, दे आर द रिसोर्सेज. और ये जो रिसोर्सेज हमने बात की है, ये हमेशा क्या होते हैं? इनफ नहीं होते हमारे लिए. दे क्रिएट द स्कार्सिटी बेसिकली. ठीक है, हमारे पास क्या होता है? फाइनेंस नहीं होता इतना ज्यादा, हमारे पास बहुत ज्यादा लेबर नहीं होती है, फिर हमारे पास बहुत ज्यादा लैंड नहीं होती है, लैंड का प्रॉब्लम रहता है, फिर हमें उस चीज को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो हमारे पास इनफ नहीं होता. ठीक है, सो दीज ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इनफ इन एन इकोनॉमी अवेलेबल. ठीक है, सो यही रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इकोनॉमी के अंदर और स्कार्सिटी क्रिएट करते हैं. ठीक है, अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से भी देख लेते हैं. मिसमैच बिटवीन द फाइनाइट रिसोर्सेज. ठीक है, फाइनाइट, व्हाट इज मेंट बाय द फाइनाइट? यस, एनीवन? व्हाट इज मेंट बाय फाइनाइट? फाइनाइट मीन्स टू से लिमिटेड. ठीक है, और इनफाइनाइट मीन्स टू से अनलिमिटेड. ठीक है, अब मिसमैच मीन्स टू से कि आपके रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, बट आपकी वांट्स क्या होती हैं? वो आपकी अनलिमिटेड होती हैं. when there is a situation of limited resources and unlimited wants and needs, then it creates a scarcity. That is the first reason. ठीक है, economics is a study of scarcity and its implication for the resource allocation society. ठीक है, अब इकोनॉमिक्स बेसिकली हम क्यों पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स इज बेसिकली यूज्ड टू स्टडी और टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी. कि हम किस तरह से इन फाइनाइट रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कितना एफिशिएंटली आप उस बजट को मैनेज करके अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं. इस स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. ठीक है, बिकॉज़ इट शोज द सोशल बिहेवियर. ठीक है, आपकी रिसोर्सेज कम होते हैं बट आपकी नीड्स या वांट्स बहुत ज्यादा होती है, तब जो है वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है. स्कार्सिटी को आप उसका सिंपल नाम दे सकते हैं शॉर्टेज. ठीक है, due to the problem of scarcity, choices have to be made. Okay, choices have to be made, then means to say you have to make selections.
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बीइंग अ स्टूडेंट, आपके पास पॉकेट मनी है 5000, ठीक है, एंड यू व्हेन गोना शॉपिंग, ठीक, आप बुक्स आप उस 5000 से पॉसिबल नहीं है कि आप कोई अच्छा नॉवल परचेज कर लें, ठीक है, आप मूवी पे देखने करना चाहते हैं, आप उसके दरमियान में सिलेक्शन करेंगे, यू विल मेक सिलेक्शन बिटवीन दोज अवेलेबल चॉइसेस, ठीक है। तो उस चॉइसेस हमें करनी पड़ती है। हम भी चॉइसेस कैसे करते हैं, हम चॉइसेस करते हैं कि जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, हम सबसे पहले उसको परचेज करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक रीडिंग हो गया या नॉवल हो गया, वो हम कहते हैं कि दैट इज रिलेटेड टू द सिलेबस, सो आई हैव टू परचेज दैट फर्स्ट वन। और द सेकंड नंबर मेरी क्या प्रायोरिटी हो सकती है कि मैं सिनेमा जाके देख सकती हूँ या फिर मैं कहीं पर ट्रिप प्लान कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसमें से आपको कि आप एक चॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द चॉइस मेकिंग, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी। Okay, the next is a scarcity. Scarcity for the all economic agents, ठीक है। I hope that the top यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा स्कार्सिटी क्या है, उसमें कैसे हम जो चॉइस मेकिंग करते हैं उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Is it clear बेटा? Okay, good. Next is scarcity for all economic agents. First of all, I just want to explain that what is meant by economic agents, ठीक है। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो इकोनॉमी में लोग एक्टिव होते हैं, जिनकी वजह से कोई भी कह ले कि एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है, दे आर द इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज अ कंज्यूमर, ठीक है, दैट इज अ इकोनॉमिक एजेंट। सेकंड इज अ प्रोड्यूसर, दैट इज द इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज अ वर्कर, दैट वन इज आल्सो इकोनॉमिक एजेंट। And the fourth one is a government, that one is also economic agent, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, 4 के 4 आपके इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इकोनॉमी में किसी ना किसी तरह से कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, कोई कह लें कि चॉइस मेकिंग कर रहे होते हैं टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स एंड फुलफिल देयर डिमांड्स। Okay, so these are the economic agents, consumers, producer, workers and the government, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देते हैं कि स्कार्सिटी का जो बिहेवियर होता है इन सबके लिए डिफरेंट होता है। कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट होगा, प्रोड्यूसर्स के लिए स्कार्सिटी का कंसेप्ट कुछ और तरह का होगा, वर्कर्स के लिए कुछ और होगा और गवर्नमेंट के लिए कुछ और होगा, ठीक है। बीइंग अ कंज्यूमर हमें स्कार्सिटी किस तरह से फेस करनी पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल हाई प्राइसेस हैं, ठीक है, और अगर प्राइसेस हाई होंगी तो इट्स मीन के जो रिसोर्सेज कम होते हैं क्वांटिटी में, the things which cannot be produced in abundance in a huge quantity, they have a high prices in the market, so the consumers have to pay the high prices, ठीक है। And the resources which are abundant in the supply in the market, they are available on the lower prices in the market, ठीक है, so the consumer will have to pay less prices, ठीक है। And then if we talk about the producer, अच्छा, अब रिसोर्सेज प्रोड्यूसर के लिए हमेशा ही रिसोर्सेज क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, ठीक है, फाइनाइट रहते हैं। जो कॉस्ट उनके लिए फिर उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है मीन्स से किसी चीज को प्रोड्यूस करने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी हाउस की हमने एग्जांपल डिस्कस की, उसमें हर चीज जो हम मटेरियल यूज करें दे आर कॉस्टली बिकॉज दे आर नॉट इन अबंडेंट इन अ क्वांटिटी, वी हैव टू पे हाई प्राइसेस टू परचेज देम व्हिच हैव अ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अस, ठीक है। हमें घर बनाने के लिए जो कॉस्ट पे करनी पड़ी है दैट इज वेरी मच हाई, ठीक है। Then if they were selling the products made from more abundant resources, ठीक है, अब अगर वो किसी ऐसे रिसोर्स से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं which are abundant in the quantity, they have a less prices, ठीक है, उसमें उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होगी, वो कम होगी। But the product which are scarce in the quantity, they will be having a high production cost for the producer. But if the products are or the resources are abundant in the supply, then the production cost will be low. So the prices in the market will also be low. Workers in the basic economic problem.
पेइंग अ वर्कर आपके लिए बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वर्कर्स में वांट मोर कंफर्टेबल एंड सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, बट प्रोड्यूसर्स ट्राई टू गिव एज मिनिमम वेजेस एज दे कैन, ठीक है। अब वर्कर्स क्या करते हैं, हमेशा सर्च में रहते हैं कि उनको जॉब उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मिले, जिसमें उनको कंफर्टेबल जोन मिले, सेफी वर्किंग कंडीशंस मिले, उनको ज्यादा प्रोटेक्टिव जॉब हो, हाई इनकम जो है ना वो उनको मिले वहां से, ठीक है, बट दे कांट हैव इट, ठीक है। उनको किसी ना किसी कह लें कि फैसिलिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल इफ दे आर हैविंग अ गुड सैलरी, maybe they don't have a safer working environment, maybe they don't have a comfortable working environment, so they have to compromise and on some place, ठीक है, उनको किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट के लिए बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकती है? बेसिक इकोनॉमिक गवर्नमेंट के लिए क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हैव मेनी सेक्टर्स वेयर दे हैव टू स्पेंड देयर बजट, देयर इनकम, ठीक है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने देखना है, हेल्थ सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक नेसेसिटीज आ जाती है, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं दे विच द गवर्नमेंट हैव टू डील विद देम, ठीक है। नाउ द बजट इज अ रिसोर्स फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। अब बजट लिमिटेड है, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट हैव टू डिसाइड दैट हाउ दे कैन cope up with all the problems they are facing in all the sectors by using that available limited budget, ठीक है। So the basically scarcity having a different concept for all the economic agent like consumer economic agents की जब भी बात होगी, it's mean we are talking about the persons who are active in that economy, consumers, producer, workers, and the government. See, any question? Is it clear, Peter? If you have any confusion, then you can ask the question. Yes, please. Okay, that's good. Thank you so much for responding. Okay, the next is अच्छा, okay. अब डेली बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है, that we use in our daily life. For example, okay, I can summarize it again about the scarcity for economic agents. Okay, I can summarize. अच्छा, okay. अब scarcity का concept तो clear है ना आपको? कि scarcity means to say that is a shortage of resources, ठीक है। resources का हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया, बल्कि आप लोगों ने एक्सप्लेन किया कि resources basically होते क्या हैं, ठीक है। Now scarcity creates the economic problem, ठीक है। अब scarcity या economic problem जो है वो different economic agents के लिए different होता है, ठीक है। differently जो है वो act करता है। For example, consumers के लिए it would be different. For producers it would be different, ठीक है। producers के लिए कैसे difference होगा? जैसे sorry, प्रोड्यूसर्स के लिए बेटा जो चीज हमें पता है दैट इज नेचर के, जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती है ना, उसकी प्राइसेस क्या होती हैं? वो कम होती हैं। जैसे पेट्रोल है, दैट इज शॉर्टेज, ऑलवेज शॉर्टेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। उसकी प्राइसेस क्या होती जाती है? होती जाती है। तो पेट्रोल जहां जहां पे भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होगा, उन प्रोडक्ट की प्राइसेस भी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स उनको यूज करके कोई चीज बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको उनकी कॉस्ट क्या हो रही है? वो ज्यादा आ रही होती है। तो जब रिसोर्सेज आपके स्कार्स होंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? वो ज्यादा होगी। अगर आपके रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड मार्केट में अवेलेबल होंगे या अबंडेंट होंगे आप रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? वो कम होती है, ठीक है। इजी टू मैनेज होता है उसके लिए प्रोडक्शन को, प्रोसेस को कंटिन्यू करना, ठीक है। अगर रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल ना हो मार्केट में, तो प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट भी ज्यादा होती है, मार्केट में उन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी क्या होती हैं? वो ज्यादा होती है। इस तरह से कंज्यूमर्स के लिए ये बेसिक प्रॉब्लम कैसे एक्ट करेगी? दे हैव टू पे हाई प्राइसेस
if the products are made from the scarce resources, ठीक है, कैसे रिसोर्सेज अगर प्रोडक्ट बन रही हैं जो कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, तो फिर देन डेफिनेटली यू हैव टू पे हाई प्राइसेस, ठीक है. But when the products are abundantly available or produced in your economy, then they have to pay lower prices, ठीक है. तो कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और प्रोड्यूसर के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वर्कर्स के लिए हमने बात की कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस तरह से, बिकॉज वर्कर्स हैव मेनी requirements when they start the job. For example, they think about the environment, they think about the income they will get from, they will receive from the job, ठीक है. अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट डेफिनेटली अगर प्रोड्यूसर को कम आ रही है तो वर्कर्स को ज्यादा पे कर सकता है, ठीक है. तो एक्चुअली में ये दोनों सारे क्या होते हैं, आपस में रिलेट कर रहे होते हैं. अब गवर्नमेंट के लिए बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगा कि गवर्नमेंट का बजट जो है बहुत लिमिटेड होता है. दे कैन नॉट फोकस ऑन ईच एंड एवरी सेक्टर इन इकोनॉमी इक्वली, ठीक है. या तो वो एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, या फिर वो हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं. इफ यू थिंक दैट गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव ऑल द सेक्टर्स इक्वली इन द इकोनॉमी, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. सो द प्रॉब्लम फॉर द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए क्या है, दे हैव अ लिमिटेड बजट but they have many sectors where they need to spend, ठीक है. अच्छा, now is it clear? Should I move forward? जी Huzaima. Okay. Okay, next thing, next economic goods and the free goods. Types of goods basically now we are going to discuss here. Goods, कितनी तरह के goods आपको नजर आते हैं. एक तो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, ठीक है. कुछ गुड्स होती है जिनको हमें परचेज करना पड़ता है, ठीक है. दैट वी हैव टू मेड फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है. गुड्स विच कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोड्यूस करते हैं. कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो कि इन्वायरमेंट में वैसे ही नेचुरली ही गॉड गिफ्टेड होती हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कैन यू टेल मी दैट व्हाट आर द कौन सी चीजें जिन्हें आपको परचेज करना पड़ता है डेली लाइफ में, जिन्हें हमें बनाना पड़ता है, कोई भी रैंडम जी. एनीवन? ओके, द गुड्स बेसिकली हम प्रोडक्ट्स को, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरी, ऐसी गुड्स जिनको हम खुद बनाते हैं, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल हम डेली बेसिस में अगर कॉमन रूटीन में देखें हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, हम ग्रोसरी करते हैं. ग्रोसरी में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करते हैं, ठीक है. वो सारी ह्यूमन मेड होती हैं, ठीक है. फिर उसके बाद हम कार पे ट्रेवल करते हैं, बाइक यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं. दीज आर ऑल द थिंग्स विच वी प्रोड्यूस बाय आवरसेल्व्स, ठीक है. जिनको हम रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं उनको यूटिलाइज करके हम खुद बना रहे होते हैं. Those things are known as the economic goods, ठीक है. कि ऐसी गुड्स जिनको हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. ऑलमोस्ट हम आप कहेंगे हम डेली बेसिस में हम जो भी चीजें देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, अभी आप अगर अपने रूम में बैठे हैं उसमें आपको डोर नजर आ रहा होगा, उसमें आपको चेयर, सोफा, बेड, एसी, ठीक है. ये सारी चीजें क्या है, दे आर ह्यूमन मेड थिंग्स, सो दे आर नोन एज अ इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है. और फ्री गुड्स कौन सी होंगी, which we don't need to produce them, ठीक है. जिन्हें हम खुद नहीं बनाते, they are naturally available, ठीक है. we just use them, utilize them, ठीक है. for example sunlight, we just use that, ठीक है. air to breathe, ठीक है. तो ये सारी क्या है, सी वाटर है, ठीक है. ये सारी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने नेचुरली प्रोड्यूस की हैं. वी डोंट नीड द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस देम, वी डोंट नीड टू प्रोड्यूस द सनलाइट,
We don't need to produce the air to breathe, or we don't need to produce the water. ठीक है, they are the naturally available. So these are known as a free goods. ठीक है, so जो goods हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, we categorize them into two categories. One is economic goods and the second one is free good. Is it clear, better? Because it is important, and in paper 1 and paper 2 there could be a question. पेपर 1 में आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं, पेपर 2 में इससे रिलेटेड आपको 2 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस जो है वो they can ask you about the difference between, what is the difference between economic goods and the free goods. ठीक है, so you have to tell the differences between them with example. For example, हम इसकी definition proper देखते हैं क्या होगी। Economic goods are all within scarce. क्या कोई एक्सप्लेन करेगा ये स्कार्स क्यों होती हैं? इकोनॉमिक गुड्स का मुझे बस बता दें कि क्या मैंने बताया, व्हाट आर द इकोनॉमिक गुड्स, बट आपने जो भी अंडरस्टैंड किया है, यू कैन मैसेज। यस, आर्या, Susanna, yes, if it is not clear, then you can ask a question. I can repeat it again. जितनी भी चीजें हम डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है, आपको asking how to be the question. And first is the first very first time which here economic goods are scarce. Why the economic goods are scarce? Economic goods क्यों scarcity का शिकार होती हैं? Why they face scarcity? Because we need to produce them by ourselves. ठीक है, जितनी भी चीजें हम खुद बनाते हैं, ठीक है, अब रिसोर्स को यूज करते हुए दे आर ऑलवेज इन लेस प्रोडक्शन एज कंपेयर टू डिमांड। ठीक है, देखिए बाइक्स बनाते हैं, हम गाड़ियां बनाते हैं, ठीक है, हम जितनी चीजें हम बनाते हैं, एसी बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, हम फूड आइटम्स बनाते हैं, जितनी चीजें हमारी अकॉर्डिंग टू द डिमांड नहीं होते। नाउ इज इट क्लियर फॉर यू? Is my voice clear to you? Okay. सो जो भी चीज आप कह लें कि आप रिसोर्सेज से खुद बनाते हैं, दे आर इन नेचर स्कार्स। ठीक है, वो हमेशा क्या होती हैं, वो लिमिटेड होती हैं, मार्केट में वो क्या अनलिमिटेडली अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, आपको कोविड का टाइम याद होगा, कोविड में क्या हुआ था, मतलब कोविड में बहुत सारी मेडिसिन हम खुद बनाते हैं, मेडिसिन इज अ इकोनॉमिक गुड। ठीक है, अब मेडिसिन थी, उसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन थी जो हम डेली बेसिस पे कॉमनली यूज करते थे, जस्ट लाइक जस्ट फॉर द पेन किलर। ठीक है, वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। वो क्यों कम हो गई थी? बिकॉज वी कांट प्रोड्यूस देम अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ठीक है, हमेशा इकोनॉमिक गुड्स क्या होती हैं, वो स्कार्सिटी का शिकार होती हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू डिमांड, जितनी उनकी मार्केट में डिमांड होती है, हमेशा वो गुड्स क्या होती हैं, वो उससे कम ही प्रोड्यूस की जाती हैं। Due to their value, producer will attempt to supply them in order to make a profit. ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेसमैन है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक कार ले लेते हैं, ठीक है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल कार्स की डिमांड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लोगों ने कम परचेज करना शुरू किया। अब इलेक्ट्रिक कार बता रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक प्राइस क्या करेंगे, हाई कर देंगे ना। ठीक है, ताकि आपको, क्योंकि लोग आपकी प्रोडक्ट को क्या परचेज करना चाह रहे हैं, तो
चीजें स्कार्स होती है ना, कम होती है, लिमिटेड होती हैं या फिर क्वांटिटी में कम अवेलेबल होती हैं, तो उनके प्राइसेस हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उनको इकोनॉमी के अंदर ज्यादा हाई प्राइसेस पे ज्यादा सेल कर सकते हैं। एनीथिंग दैट हैज अ प्राइस टैग ऑन इट इज इकोनॉमिक गुड। जो चीज हम परचेज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमें पे करना पड़ता है, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज हो सकती है, एनीथिंग दैट हैव अ प्राइस टैग मींस टू से फॉर व्हिच दे you have to pay to utilize that product, that is an economic good. For example, oil, corn, gold, trainers, watches, bicycles, ठीक है, इसमें सारे आ जाते हैं, ठीक है। Ahmad is saying that my voice is not clear. Okay, I try. Is it clear now? Hello. Okay. Okay, next is about the free goods. Free goods for which we don't have to pay. They are abundant in a supply. Abundant in a supply means to say they are unlimitedly available in the market. ठीक है? So they are abundant in a supply. कि अब water है, that is abundant in supply in a nature, ठीक है? And और इसके अलावा sunlight, that is abundant in the nature, ठीक है? तो ये ऐसी चीजें, फ्री गुड्स ऐसी चीजें होती हैं जो कि सप्लाई में बहुत ज्यादा होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, एंड दे आर इनफ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंज्यूमर। ड्यू टू दिस अबंडेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम सप्लाइंग द फ्री गुड्स, ठीक है? क्योंकि अब जो रिसोर्सेज अबंडेंट होते हैं, हम उनके प्राइसेस भी ज्यादा, हम वाटर है, ठीक है, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा, आप पानी अगर परचेज भी करते हैं, ठीक है, वो अफोर्डेबल प्राइस में ही होता है, ठीक है, वो क्योंकि वो अबंडेंटली नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। दे आर जस्ट प्योरीफाइंग द वाटर एंड प्रोवाइडिंग यू एंड सप्लाइंग यू, ठीक है। तो प्योरीफाई करने के वो आपको चार्जेस आपसे चार्ज करेंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस वो वाटर की चार्ज नहीं कर सकते। Drinking water has been a free good for thousands of the years. But as the population increases and water source become more polluted, it has become an economic good. ठीक है, अब जो वाटर आप बॉटल्स की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि प्योरीफाइड होता है, ठीक है। अब हर जगह पानी जो है वो ड्रिंकेबल नहीं है, ठीक है, यू कैन नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज इट, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू पे सम अमाउंट, ठीक है। तो वो अब आके जो है वो आपके इकोनॉमिक गुड में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब उसने फ्री गुड्स की कौन कौन सी एग्जाम्पल दी है? सनलाइट, एयर वी ब्रीथ एंड सी वाटर, ठीक है। ये सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे? आपके जो है वो फ्री गुड्स में आ जाएंगे। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, एंड दे आर अबंडेंट इन अ सप्लाई इन अ मार्केट, दे आर नोन एज अ फ्री गुड्स। Now, is there any question? You are free to ask the question from start to the end. अब या फिर मुझे इसको हम क्विकली, अगर हम कह लें कि एग्जिट टिकट के तौर पे अगर आप कुछ मुझे बताएं, पॉइंट्स लिखिए अगर आप मैसेज में कि हमने आज ये पढ़ा, हमने आज ये टॉपिक सीखा, हमने आज ये टर्म सीखी, देन यू कैन टाइप एंड शेयर विद मी सेंड मैसेज। उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो चाहिए। Did you get the concept about a clear concept about the scarcity? Any question about it? You can give thumbs up. It will give me a quick feedback about today's lesson. All clear. Okay, Faria has all clear. Yes, Ahmad. All clear. Okay, and Kuzamagul. Yes. I think tomorrow, first of all, I will start the lesson by MCQ, ठीक है। पेपर पैटर्न के मुताबिक मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQ जो हैं वो सॉल्व करेंगे हम, जिससे ये होगा इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इट विल हेल्प टू रिवाइज इट। बाकी ये है कि हमने आज जो टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है। डू यू पीपल हैव अ बुक और अ सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन कंसल्ट? Any book? Do you people have any book?
Economics book. From where you can revise this topic. Yes, बेटे आप लोग कौन सा सोर्स यूज करेंगे इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए? डेफिनेटली आपके पास कोई बुक होगी तो जिससे ओके आई विल शेयर विद मैम नागिया, ठीक है? तो देन शी विल फॉरवर्ड इट टू यू पीपल इन अ ग्रुप, ठीक है? आप वो पीडीएफ में है, ठीक है? वहां से आप इस टॉपिक को रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है? बट योर होमवर्क इज yes, definitely you can buy that. I will also share it in a PDF, ठीक है? सोशल ग्रांट की आपने जो है ना वो बुक जो है वो परचेज करनी है इकोनॉमिक्स की, ठीक है? जो लेटेस्ट एडिशन है उसका मैं उसकी पिक्चर जो है वो सॉफ्ट कॉपी उसकी सॉरी मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, देखें जैसे भी आपको जो है ना कंफर्टेबल लगता है आप यू कैन यूटिलाइज दैट, ठीक है? टुमारो वी विल स्टार्ट विद द एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस टॉपिक. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, ठीक है, आपने आज इस टॉपिक को डिटेल में बुक से रीड आउट करना है, ठीक है? तो फिर उसके बाद कल मैंने आपसे ही एमसीक्यूज जो है उसको सॉल्व करवाने हैं ताकि मुझे आइडिया हो कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, देन वी विल मूव फर्दर, ठीक है? अच्छा, जो हमने आज टॉपिक्स पढ़े ना इसमें जो आपके पेपर 2 में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको थोड़े से साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक गुड्स एंड फ्री गुड्स. इसमें ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें. और क्वेश्चन क्या हो सकता है? डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक गुड्स एंड द फ्री गुड्स, ठीक है? और यू कैन से दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज डिफरेंस between free and economic goods. Free and economic goods, ठीक है? अच्छा, ये आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. इट्स मीन कि अब आपने इसका आंसर कैसे लिखना है? आपने दोनों के कोई से भी दो डिफरेंसेस लिखने हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक गुड्स का आप लिख सकते हैं दे आर स्कार्स, ठीक है? और फ्री गुड्स का आप लिख सकते हैं देयर अबंडेंट इन सप्लाई, ठीक है? और सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है दोनों में? फॉर इकोनॉमिक गुड्स वी हैव टू पे सम अमाउंट, ठीक है? और फ्री गुड्स में आप लिख सकते हैं वी डोंट नीड टू पे एंड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द गुड, ठीक है? तो ये आपकी इस तरह से दो डिफरेंसेस बनेंगे. यू कैन आल्सो गिव द एग्जांपल इफ मेंशन इन अ क्वेश्चन, ठीक है? दिस इज द वे दैट हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन. अब अच्छा, अब इसमें स्कार्सिटी की डेफिनेशन बहुत आती है. सेकेंडली पेपर 1 में स्कार्सिटी से रिलेटेड या फिर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड एमसीक्यूज लाजमी मस्ट होता है. मोस्टली पेपर 1 में फर्स्ट जो आपके 1 और 2 एमसीक्यूज होते हैं ना वो आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जिसमें वो स्कार्सिटी से रिलेटेड डिफरेंट स्टेटमेंट्स देता है, करेक्ट स्टेटमेंट आपने सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें डेफिनेशन आपने मस्ट करनी है स्कार्सिटी की, ठीक है? फिर उसके बाद सेकंड इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ स्कार्सिटी. स्कार्सिटी हमेशा से कंटिन्यू रहती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है? एट एनी कॉस्ट, ठीक है? ये कभी भी जो है वो कह लें कि स्कार्सिटी को हम ओवरकम नहीं कर सकते, चाहे वो जितनी भी डेवलप हो जाए इकोनॉमी, जितनी भी प्रोग्रेस कर जाए कोई भी इकोनॉमी, बट स्कार्सिटी विल एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, ठीक है? ये हमेशा इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती रहती है. सो स्कार्सिटी इज कंटिन्यू इन द नेचर, ठीक है? ओके बेटा, योर टाइम इज ओवर, ठीक है? सी यू टुमारो इंशाल्लाह. गुड बाय, अल्लाह हाफिज.